Cosmids. Cosmids were first described by Collins and Horn in 1978. Now, cosmids are the vectors which can carry a bit larger amount of DNA. So they can take up the inserts up to 52 kilobases of DNA, but usually we use them for 45 kilobases. So they are a hybrid between plasmids and bacteriophage lambda. So let's see what they take from bacteriophage lambda and what they take from the bacteria. So as any normal plasmid can replicate easily in a bacteria, if you take a normal plasmid and you put on some lambda cos sites on it, which are around 12 base pairs GC rich region, that helps that particular plasmid to be packaged inside a bacteriophage. And that is required for in vitro packaging. Now you must be thinking, okay, then what's the difference? What's the fuss about? That we saw that there were some vectors which were developed on the genome of bacteriophage lambda. हमने उनमें क्या किया था? हमने एक bacteriophage lambda लिया और हमने उसका जो नॉन एसेंशियल रीजन था वो हमने उड़ा दिया, उसमें अपना जीन ऑफ इंसर्ट डाल दिया और वो bacteriophage lambda में पैकेज होने लग गया. तो फिर what is different in cosmids? Okay, park this point. I'm gonna come to it in a minute. Second, एक और चीज आपको याद होगी, and that was कि जो bacteriophage lambda का head है, it cannot take more than 52 kilobases. इससे ज्यादा वो पैकेज नहीं कर सकता. और हमारे पास वो जो इंसर्ट था, that was around 18 kilobases से हम ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि otherwise we'll be deleting essential genes. तो how come by using cos sites we can package up to 52 kilobases या हम 45 kilobases कैसे पैक कर सकते हैं? What has changed in this story? Let's see. Basically, emphasis on in vitro packaging. So what you exactly do is कि आप इसके अंदर बेसिकली एक एक्स्ट्रा इकोलाई इस्तेमाल करते हैं जो आपको बैक्टीरियोफेज का कोट और टेल दे रहा होता है. और क्योंकि आपने कॉस साइट्स डाली होती हैं, दोस कॉस साइट्स हेल्प इट टू पैकेज इनसाइड दैट पर्टिकुलर virus. So we'll see some images about it in detail later. So this hybrid structure enables insertion of large DNA fragments. The quality of it, that it is a plasmid, is that it can replicate, and we can engineer that plasmid with suitable region of replication. For example, अगर हमने mammalian cells के साथ कोई ऐसा insert बनाना हो तो we'll go for SV40 ORI. अगर हम col E डाल देते हैं तो obviously we are going for double stranded DNA replication. और अगर हम F1 ORI डाल देते हैं तो we all know कि it's a fertility plasmid, or we can have single stranded DNA replication in prokaryotes. So basically आपके पास काफी maneuverability आ गई है. This is how typical plasmid looks like. This is PJB8 which has 5.4 kilobase pair long, और इसमें आप देख रहे हैं कि एक lambda DNA का कुछ part है, and that is pretty much cos DNA, जो उसके cos ends हैं और उसके साथ कुछ मजीद a bit sequence है जो उसको integration में further help करती है. Now what you do very simply कि आपको फायदा क्या हो रहा है कि you have taken a circular PJB8, आपने उसको BAM-H1 से रिस्ट्रिक्ट किया, अपना मर्जी का जीन इंसर्ट किया, तो अल्टीमेटली एक कैटिनेन बन जाएगा. और वो कैटिनेन जब आप एक इन विट्रो सोल्यूशन में डालेंगे, विच वुड बी अ लॉन्ग सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए, तो इन विट्रो पैकेजिंग के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है वो कॉस साइट्स पे इसको कट करता रहेगा, और अल्टीमेटली यू विल हैव अ रिकॉम्बिनेंट कॉस्मेट डीएनए जो अल्टीमेटली फेज पार्टिकल्स के अंदर पैक हो जाएगा. उससे हम इन्फेक्ट करा देंगे ई कोलाई. लेकिन अब इस फेज में क्योंकि कौन सा डीएनए जो अभी हमने बनाया है, इसमें वो सारे जो फेज की रिक्वायरमेंट के जीन्स थे वो नहीं है. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि फेज अपने आप को रेप्लिकेट कर सके. इसका मतलब ये हुआ कि फेज सिर्फ डीएनए इंसर्ट करने के काम आ रहा है.
हमने अपने पहले लेक्चर्स में देखा था कि वाई वी नीड फेज, क्योंकि 10 किलो बेस पेयर से ज्यादा हो जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट वेरी सक्सेसफुल, एंड देयरफॉर वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ व्हाट मैकेनिज्म, ट्रांसडक्शन। एक फेज का डीएनए ट्रांसफर करना बैक्टीरिया को, दिस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। तो बेसिकली हम फेज को सिर्फ एज अ ट्रांसडक्शन यहां पर यूज कर रहे हैं। लेकिन जो हमने कॉस वेक्टर बनाया है, जो हमने ये कॉस्मिड बनाया है जिसमें प्लाज्मिड आपका जीन कैरी कर रहा है, जिसके साइड के ऊपर कॉस साइट्स लगी हुई हैं, इसके अंदर हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम बेसिकली बैक्टीरियोफेज लैम्डा के बाकी सारे जीन्स डाल दें। ओके, देयरफॉर हम क्या करते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं। हम एक ई कोलाई के अंदर कुछ ऐसे जीन्स डाल देते हैं जो बेसिकली एक वायरस के हेड एंड टेल असेंबली को कैप्चर कर सके। तो वो जो बैक्टीरिया है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा है, और वो आराम से ग्रो करते हुए उसके अंदर हेड भी यानी कि फॉर्म हो रहा है, उसमें टेल भी फॉर्म हो रही है। हम उस बैक्टीरिया के एक्सट्रैक्ट को लेंगे, हम उसको बेसिकली सेलाइज कराएंगे बैक्टीरिया का, विल आइसोलेट द प्रोटीन्स, दोस प्रोटीन्स विल बी द बैक्टीरियोफेज हेड एंड द टेल, और दूसरी साइड से वी विल टेक आवर डीएनए जो बेसिकली हम लोगों ने इस कॉस्मेट के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो बेसिकली दैट वुड बी अ लॉन्ग चेन which we call concatemers, and they would be enzymatically cleaved when they would being packaged inside a bacteriophage head. जब वो पैकेज हो रहे होंगे बैक्टीरियोफेज हेड में, तब वो कॉस साइट्स के ऊपर क्लीव होते जाएंगे। वेरी सिंपल, अल्टीमेटली डीएनए मॉलिक्यूल वुड बी पैकेज्ड इनसाइड द फेज पार्टिकल। तो जो साइज ऑफ फॉरेन डीएनए है जो हम कॉस्मिड में इंसर्ट कर सकते हैं, दैट नीड्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड to 35 to 45 किलो बेसिस। नाउ टेल मी व्हाई इज दैट। हम लोगों ने बारहा इस बात को डिस्कस किया है कि a phage, a bacteriophage lambda head cannot take more than 52 किलो बेसिस। तो बेसिकली आपको 5 किलो बेस आपको बाकी जो असेंशियल जीन्स हैं, कॉस सीक्वेंसेस हैं, उनके लिए देना है, और फिर उसके बाद आप 45 किलो बेसिस से ज्यादा नहीं डाल सकते। ज्यादा से ज्यादा खींच लें तो चलें, यू कैन गो टू 47 किलो बेसिस। The total length of the cosmid plus the DNA insert should be 75 to 105% of the size of phage lambda DNA for efficient packing. So the phage particles then infect E. coli, and once the DNA enters, the DNA circularizes and replicates like a plasmid. तो उसके बाद हमको कॉलोनीज बनती नजर आती हैं, हमको फेज प्लेक्स बनते नजर नहीं आते, and well, you can say the plasmid lives happily ever after inside a bacteria.